Our plan is very simple, that the energy that we have from the victory of the movement that we just witnessed across the country, that energy has to be channelized. That energy does not have to dissipate. That energy has to be channelized in changing the education system and the way universities work, colleges work, the politics in universities and colleges works throughout this country. And because I have been a student of DU when I was in my undergrad, I know the kind of politics that goes on in DU. I know that the people who become office bearers in DUSU have nothing to do with the issues and concerns of the students of Delhi University. And therefore, to highlight the concerns of the students of Delhi University, be it their struggle against FIUP, be it their struggle against fee hike, be it their struggle of targeting of their own professors, be it their own struggle of the change in curriculum, everything, be it the shrinking space, democratic space in Delhi University, to one, highlight these issues, and to two, urge the students, mobilize the students that if they want a positive change, not just at the level of the removal of Dharmendra Pradhan, but at the level of their colleges, but at the level of their department, but the level of their center, if they want that, they must actively participate in changing the politics of Delhi University, of their own colleges, of their own centers. The movement is not over. You also plan to travel all around across India. Can you tell us about the idea behind it and what is the motivation? The motivation is the same as coming here to Delhi University. The motivation is that the students of this country have been neglected for too long. And a lot of the students who were part of the Jantar Mantar protests, they did not come there because they were NEET aspirants. They did not come there because they were of course they wanted Dharmendra Pradhan's resignation, but they were there for jobs. They were there against unemployment. They were there against the divisive politics that they try to continuously push within our country. They were there because our universities and public sector is being increasingly privatized. So this struggle of the people of this country is manifold, and it is going on in different parts of the country. And I was continuously receiving invitations where they were asking me to come. And I also believe that as it is our responsibility as a student movement, that the same thing that we are trying to do here in Delhi, that if we have to change the education system, it's not enough just for Dharmendra Pradhan to resign. It is important that the struggle is taken to our colleges, to our universities, to our centers, to our departments. That the politics, in the way the politics works in our universities, that is changed. It is important that the NTA as an agency is removed, is completely scrapped. It is essential that the NEP is completely rolled back, and that is the purpose of my name. रखिएगा कि किस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री बार बार बेटियों को माफ करने की बात करते हैं, बार बार ये ओनस और ये जिल्लत बेटियों के सर डालते हैं कि ये कैसी भाषा के इस्तेमाल कर रही हैं। इस मिसोजिनी को याद करिएगा जो बार बार प्रोफेनिटी ऑफ लैंग्वेज पे बात करते हैं, लेकिन उनके क्रिमिनलिटी ऑफ एक्शन पे बात नहीं होती है, हमारी टूटी हुई हड्डियों की मोरालिटी पे बात नहीं होती है। बार बार इस मूवमेंट को जिंदा रखिएगा। और अगर आज किसी चीज के लिए हमें लड़ना है, इस मूवमेंट का अगला कदम जो होना है वो ये होना है कि वो अमित शाह जिसने इस हिंसा को अंजाम दिया, वो अमित शाह जिसने ऑर्डर्स दिए कि ये पैलेट गन्स बांटी जाएंगी 20 की सुबह, वो अमित शाह जिसने अगर वहां पे खड़े होकर ऑर्डर नहीं भी दिए, मैजिस्ट्रेट ने वो ऑर्डर पास किए बिना अमित शाह को पता हुए, तो वो एक इनकेपेबल होम मिनिस्टर है और इस तहत वो इस्तीफा दें। और अगर उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं तो वो कल्पेबल है, इस तहत वो इस्तीफा दें। और वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो रातों रात बदल गए और उनके रातों रात बदलने के बाद सोनम वांगचुक को सुबह सुबह उठा लिया जाता है और 20 जुलाई का खूनम खून ब्लड बाथ हम लोग सेंट्रल दिल्ली में देखते हैं, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिजाइन करना होगा। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम स्टूडेंट्स के लिए जो इस मूवमेंट से जुड़े रहे, वो ये है कि जो लेसन्स हैं इस मूवमेंट के, वो लेसन्स ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और हम जीत गए। वो लेसन ये है कि अगर हम यूनाइटेड संघर्ष लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अगर हम अपने तमाम डिविजन्स की राजनीति को जो हमें सिखाई गई है उसको अंडू करके अपनी शिक्षा और भविष्य के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो बड़े से बड़े तानाशाह को हम घुटनों पे ला सकते हैं। ये सीख है, इस सीख को जिंदा रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले समय में बार बार इस सीख को दोहराना है हमें।
बार बार वो संघर्ष जो अधूरे रह गए हैं, वो संघर्ष उन वर्कर्स के जो अभी भी बंद हैं जेलों में, नोएडा में, मानेसर में, वो संघर्ष ट्रांस बिल का जो ट्रांस एक्ट बन गया पर उसे रोल बैक नहीं कराया गया, वो जिंदा है। वो संघर्ष की तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हमारी यूनिवर्सिटीज से निकले, वो आज भी बिना ट्रायल के जेलों में बंद है, वो संघर्ष जिंदा है। वो संघर्ष की विमेन्स रिजर्वेशन बिल और उसके अंदर कोटा विद इन कोटा की बात करते हुए उसको पास किया जाए, वो संघर्ष अभी भी जिंदा है। SIR के खिलाफ चोट करना अभी जिंदा है। लिमिटेशन के इनके एजेंडा के खिलाफ चोट करना अभी जिंदा है। तमाम जन संघर्ष जिसमें जनता सड़कों पे उतरी हुई है और सत्ता को चुनौती दे रही है, उन तमाम संघर्षों में हमारी भागीदारी अभी बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जो ऊर्जा हमें महसूस होती है, उस ऊर्जा को इन जन आंदोलनों की तरफ लगाना है। हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस का नक्शा बदलना है। वो लोग जो सालों साल, अभी 1 महीने का समय अपने आंखों के सामने आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को बदलते हुए देखेंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि 1 महीना पहले इसी सड़क पे खड़े हुए थे क्या। इसलिए इस पे बात करना चाहती हूँ मैं, बहुत जरूरी है। वो लोग जो बार बार डूसू में ऑफिस बेरर बन जाते हैं और इस ऑफिस को, यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस है, में से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि इससे पहले की जो हमारी जनरेशन्स रही हैं और जिस तरीके से हमने सिस्टम को फलते फूलते नर्चर होते हुए देखा है, हम उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कौन से धर्म, कौन सी जाति, कौन से एरिया से आते हैं, हम जंतर मंतर के जो मूवमेंट ने पॉसिबिलिटी खड़ी कर दी कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के साथ लड़ना होता है। एक यूनाइटेड ताकत से जो छात्रों के विरोध में लगातार काम कर रही है। तो आप लोग कहते हैं कि इस आइडिया के साथ हम खड़े हुए हैं, हम इस आइडिया के साथ खड़े हुए हैं कि अब हम नहीं होंगे डिवाइड। आपके कास्ट के एजेंडा पे, आपके रिलीजन के एजेंडा पे, आपके जेंडर के एजेंडा पे नहीं होंगे डिवाइड हम लोग। हम अगर कुछ होंगे तो वो यूनिफाइड स्ट्रगल में होंगे। अगर हम कुछ होंगे तो संघर्षशील पंक्तियों में होंगे। अगर हम कुछ होंगे तो सड़कों पे मिलेंगे। अगर हम कहीं मिलेंगे तो बैरिकेड्स के पीछे मिलेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जनरेशन जानती है कि अगर आगे इस देश को बचाना है, इस पूरे पब्लिक एजुकेशन के सिस्टम को बचाना है, तो हमें बचाना है। इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द यंग पीपल स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जिनके कंधों पे आज ये जिम्मेदारी है कि इस देश को जिस नफरत की आग में झोंक दिया गया था, उस नफरत की आग से बाहर निकालेंगे हम इस देश को। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये जिम्मेदारी समय समय पे इस देश के नौजवानों ने, इनफैक्ट दुनिया भर के अलग अलग देश के नौजवानों ने इस जिम्मेदारी को निभाया है। और आज हम अपने देश में जिस तरीके की नफरत देख रहे हैं, जिस तरीके की लूट देख रहे हैं, जिस तरीके के पब्लिक यूनिवर्सिटीज को बेचा जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है, अगर किसी को इस देश को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, तो इट हैज टू बी आवर जनरेशन। तो इस जनरेशन की इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेरा बहुत बहुत सलाम, आयशा का बहुत बहुत सलाम।